لکھا امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے دل کی جس پاکی کا تذکرہ کیا ہے اس پاکی سے مراد دل کا شرک اور شک سے پاک ہونا ہے۔ آدمی کا دل شرک سے پاک ہو اور آدمی کا دل شک سے پاک ہو، یہ دو بڑی اہم باتیں، بنیادی باتیں آپ سنیں۔ بغوی رحمت اللہ علیہ نے یہ تفسیر ذکر کرنے کے بعد کہا یہی اکثر مفسرین کی تفسیر ہے، یہی اکثر مفسرین نے معنی بتایا ہے کہ یہاں دل کی سلامتی سے مراد میرے اور آپ کے دل میں توحید خالص ایسی رہے کہ شرک کا کوئی شائبہ، شرک کی ادنا سی بات، شرک کا ادنا سا درجہ بھی میرے اور آپ کے دل میں جگہ نہ پائے، ایسے ہی شک کی ذرا برابر گنجائش میرے اور آپ کے دل کے اندر پیدا نہ ہو۔ MMFG ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور صدقے جاریہ کا مستحق بنیں۔ ہمارے نیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم۔ محترم اور معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کا ہمارا جو اجلاس ہے یہ تربیتی اجلاس ہے، اور ایسے اجلاس میں ہم اور آپ ایسے موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں، سنتے ہیں جن موضوعات کی روشنی میں ہم اپنی عملی زندگی کو سدھار سکیں، اپنے عمل کی اصلاح کر سکیں اور اپنی دنیا کو پہلے سے بہتر بنائیں تاکہ ہماری آخرت ہماری اپنی توقع اور امیدوں سے زیادہ بہتر بن سکے۔ اسی حوالے سے میں نے آج آپ حضرات اور خواتین کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے ایک بہت ہی آسان اس معنی میں کہ یہ ہمارے روز مرہ کے معمولات سے جڑی باتیں ہیں، عنوان کا انتخاب کیا ہے۔ ہم اور آپ ابھی دو عظیم عبادتوں سے فارغ ہوئے ہیں۔ ایک تو اللہ نے جن کو توفیق عطا فرمائی، جن کے مقدر میں اللہ نے لکھا، حج بیت اللہ سے ابھی فارغ ہوئے ہیں، اور جو حج بیت اللہ کے لیے جا نہ سکے، ہم اور آپ، ہم نے ابھی عید الاضحیٰ منائی ہے۔ یہ دونوں عبادتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، آپ کی شخصیت، آپ کا گھرانہ اور آپ کے گھروں کی جو مختلف حالات میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کی مثالیں ہیں، ان مثالوں کو ہمارے اور آپ کے دل و دماغ میں تازہ کروانے والی رہی ہے۔ آپ نے یقیناً بہت ساری باتیں ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اپنے گھرانے کے حوالے سے پچھلے دنوں سنی ہوگی۔ میں نے اسی حوالے سے یہ بات مناسب سمجھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا کے کچھ الفاظ کا انتخاب کر کے آپ کے سامنے گفتگو کروں، اور اسی لیے حمد و صلات کے بعد آپ حضرات کے سامنے جو آیات میں نے پڑھی
सूरह शुआरा की ये आयतें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ के बाज़ कलिमात हैं, बाज़ अल्फाज हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की कि वला तुख़्ज़िनी यौम युबअसून, मुझे उस दिन शर्मिंदा न कर जिस दिन ये सब जिंदा किए जाएंगे, दोबारा उठाए जाएंगे। यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, वो दिन जिस दिन न माल काम आएगा न औलाद काम आएगी। दुनिया में इंसान आमतौर पर दो चीज़ों से ताकतवर माना जाता है, या तो आदमी का अपना ख़ानदान कबीला ऐसा हो कि वो ख़ानदान कबीले के अफराद और उनकी तादाद ही उनकी हैबत, उनकी ताकत और समाज में उनकी अपनी पहचान हो, तो फिर बड़ा घराना, बड़े ख़ानदान, जोरावर लोगों की बात हर कोई मानता है। आदमी अपनी दुनिया में अक्सर मामलात इसी ख़ानदान के ज़ोर पे हल कर लेता है, या फिर आदमी के पास माल हो तो मालदार के सामने तो अच्छे अच्छे आकर अपनी बात भूल कर सामने वाले की बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। अल्लाह ने फरमाया रोज़े क़ियामत ये दो असबाब भी काम आने वाले नहीं हैं, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, हाँ मगर वो इंसान जो अल्लाह ताला के पास क़ल्बे सलीम लेकर आए। क़ल्बे सलीम लेकर आए तो अल्लाह ताला के पास वो इंसान कामयाब होगा, और वो इंसान अल्लाह चाहेगा तो दूसरों के हक़ में सिफारिश करने वाला भी होगा। क़ियामत के दिन मालो औलाद की बात नहीं होगी, क़ियामत के दिन आपके, मेरे और आपके दिल की सलामती और मेरे और आपके अमाल की दुरुस्तगी की बात होगी। ये दुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की। ये दुआ भी है, ये दुआ तालीम भी है। ये दुआ अल्लाह ताला से अपनी हाजत को मांगना भी है, और उसके साथ साथ अपने उम्मतियों और बाद में आने वाले मोमिनों की तरबियत भी है कि हमें असल में मेहनत किस बात पे करनी है। आप यकीन करें, मेरे और आपके मामूलात ज़िंदगी देखें, सुबह से लेकर शाम तक हम किसके लिए मेहनत करते हैं? अपने माल के लिए, जायदाद के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपनी दुनिया को बेहतर करने के लिए, अपने घराने के लिए, अपनी दुनिया के लिए सब कुछ करते हैं। ये आयत हमें बताती है कि जो दुनिया के लिए करना है वो दुनिया की जरूरत भर करो, लेकिन असल जो फिक्र करनी है वो क़ल्बे सलीम अपने अंदर लाना, या यूं समझो कि अपने क़ल्ब को, अपने दिल को वो दिल बनाना जिस दिल को क़ल्बे सलीम कहा जा सके। हाज़रीन गिरामी, इस आयत ने मेरे और आपके सामने एक मसला बहुत साफ तौर पे रखा है कि क़ल्बे सलीम, सही सालिम दिल, बेऐब दिल, पाक दिल, साफ दिल, ये हम सब की जरूरत है। और रोज़े क़ियामत मुझको और आपको सबको कामयाब होना है। आप में से कौन होगा जो ये कहे कि हमें आखिरत की कामयाबी की परवाह नहीं है? ऐसा कौन नादान होगा जो ये कहे कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं आखिरत में कामयाब होता हूं कि नाकाम होता हूं? सारे ये कहेंगे दुनिया की बात अपनी जगह, लेकिन आखिरत में अल्लाह ताला बेड़ा पार कर दे, अल्लाह ताला नजात दे दे, ये हर किसी की तमन्ना है। जो नेक है वो भी अल्लाह से ये उम्मीद रखता है, यकीन रखता है, और जो बुरा है वो बुरा होने के बावजूद अल्लाह ताला से उम्मीद रखता है कि अल्लाह ताला आखिरत में मुझे कामयाब कर देगा। यह आयत करीमा मुझको और आपको बताती है कि ये आरज़ू, ये तमन्ना, ये ख्वाहिश कि रोज़े क़ियामत में कामयाब हो जाऊं, रोज़े क़ियामत में अल्लाह ताला के पास नामुराद न बनूं, मैं अल्लाह ताला के पास खुशकिस्मत साबित हूं, अगर ये तमन्ना आपके अंदर है तो फिर आपको और मुझको इस बुनियादी मसले पे मेहनत करनी पड़ेगी कि हमें अपने क़ल्ब को क़ल्बे सलीम बनाना पड़ेगा। हमारे दिल की अपनी सफाई की तरफ हमें तवज्जो देनी पड़ेगी। हमें अपने दिल को पाक करने, साफ करने की फिक्र करनी पड़ेगी। सवाल यह है कि अगर इतना अहम मामला है दिल की सफाई का, दिल की सफाई का मामला इस कदर अहम है कि रोज़े क़ियामत मेरी और आपकी नजात का मामला मेरे और आपके दिल की सफाई से जुड़ा हुआ है, तो बात यह समझने की है वो कौन सी सफाई है जो अल्लाह ताला मुझसे और आपसे चाहता है। दिलों की सफाई, कौन सी सफाई? हमें अपने दिलों को कैसे साफ करना, कैसे पाक करना है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझको और आपको क़ियामत के दिन पसंद कर ले, और रोज़े क़ियामत क़ल्बे सलीम का हामिल मुझे और आपको मान ले अल्लाह ताला, और मुझको और आपको नजात दे दे। आखिर वो कौन सी सफाई? हमारी आम बोलचाल की ज़बान में हम
किसी आदमी से झगड़ा हो जाता है और झगड़ा होने के बाद जब सुलह सफाई होती है, आदमी अपनी जबान में कहता है तुम गवाह रहो, मेरा दिल तुम्हारे लिए साफ हो गया है, मैं अपने दिल को साफ कर चुका हूं, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई गलत बात नहीं है। क्या इस हदीस आयत में कल्बे सलीम जिसे कहा गया है, ये वही कल्बे सलीम मुराद है, वही बीमारियों से पाक दिल मुराद है, या फिर ये कि इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जिस कल्बे सलीम का तज़किरा किया है वो कुछ और है? आज यही मसला हम और आपको समझने की जरूरत है। भाइयों, मैं आपको बताना चाहूं, हमारे समाज में एक बड़ा तबका ऐसा है जो ये समझता है कि हम और आप अगर इंसानों के लिए अपने दिल को साफ कर लेंगे, अपने दिल को पाक कर लेंगे, हम अपने दिलों के अंदर किसी के लिए बुग़्ज़, कीना, कपट, हसद, जलन की कोई कैफियत नहीं रखेंगे, तो ये हमारी और आपकी कामयाबी की जमानत बन जाएगी। याद रखो अल्लाह के बंदो, यकीनन ये कल्बे सलीम को, दिल को कल्बे सलीम बनाने का एक मरहला है, एक दर्जा है। लेकिन कल्बे सलीम या सही सालिम दिल, बेऐब दिल, पाक दिल सिर्फ इसी का नाम नहीं है। असल पाकी क्या है, असल दिल की सफाई क्या है, असल दिल को पाक करने का मतलब क्या है, और आज हमारी और आपकी जिंदगी में उस सफाई की तरफ कितनी तवज्जो है, यही पैगाम मैं आप हजरात और खवातीन को देना चाहता हूं। आप अगर इस आयत की तफसीर पढ़ेंगे ना, तो मुफस्सिरीन किराम में से कई मुफस्सिरीन ने लिखा, इमाम बगवी रहमतुल्लाह अलैहि ने इस आयत की तफसीर में लिखा कि यहां अल्लाह ताला ने दिल की जिस पाकी का तज़किरा किया है, उस पाकी से मुराद दिल का शिर्क और शक से पाक होना है। आदमी का दिल शिर्क से पाक हो और आदमी का दिल शक से पाक हो। ये दो बड़ी अहम बातें, बुनियादी बातें आप सुने। बगवी रहमतुल्लाह अलैहि ने यह तफसीर जिक्र करने के बाद कहा, यही अक्सर मुफस्सिरीन की तफसीर है, यही अक्सर मुफस्सिरीन ने माना बताया है कि यहां दिल की सलामती से मुराद मेरे और आपके दिल में तौहीद खालिस ऐसी रहे कि शिर्क का कोई शायबा, शिर्क की अदना सी बात, शिर्क का अदना सा दर्जा भी मेरे और आपके दिल में जगह ना पाए। ऐसे ही शक की जरा बराबर गुंजाइश मेरे और आपके दिल के अंदर पैदा ना हो। भाइयों, जरा हम यहां रुकते हैं, रुक कर इस मसले को समझते हैं। तौहीद अल्लाह का फजल करम है, हमारी अपनी मस्जिदों में, हमारे अपने मिंबर और मेहराब से पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है। अल्लाह का फजल करम है, हमारे दुरूस में तौहीद पढ़ाई जाती है। लेकिन भाइयों, जो बात याद रखने की वो बड़ी अहम है, याद रखना शिर्क की सूरतें, शिर्क की शक्लें और शिर्क के दर आने वाले रास्ते, जहां जहां से शिर्क आता है, कैसे शिर्क आता है, इस तरफ से चौकन्ना रहने वाली बात असल में मेरी और आपकी फिक्रमंदी होनी चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, कितने ऐसे भाई हैं, कितनी ऐसी बहनें हैं जो अल्लाह के फजल करम से किताब और सुन्नत की दावत के हामिल घरानों से, अल्लाह का फजल करम है, वो खुद किताब और सुन्नत के मानने वाले मुवहिद घराना है, वो तौहीद जानते हैं, मानते हैं। लेकिन एक बात आज मैं बड़े गहरे जायजे के बाद आप भाइयों के सामने रखना चाहता हूं। मेरे भाइयों, अहले इल्म ने बहुत पहले ही ये बात लिखी है, तौहीद समझना काफी नहीं, तौहीद के साथ शिर्क का समझना जरूरी है। तौहीद की बारीकियां जानने के लिए शिर्क की बारीकियां जानना जरूरी है। और शिर्क कहां कहां से आ सकता है, कैसे कैसे आ सकता है, इस पे नजर रख के जिंदगी गुजारना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी की जबान से एक कलीमा निकला, माशा अल्लाह व शिअता, जो अल्लाह चाहे और आप चाहे। अल्लाह के नबी ने कहा, अजअलतनी लिल्लाहि निद्दा, क्या तुमने मुझे अल्लाह ताला का बराबर करार दे दिया, शरीक ठहरा दिया? कुल माशा अल्लाह वहदा, तुम कहो जो अल्लाह चाहे, सिर्फ अल्लाह जो चाहे वही होगा। आप ये देखें, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यह हदीस मुझको और आपको बताती है कि हमारी जबान से निकलने वाले जो अल्फाज होते हैं ना, इन अल्फाज में एहतियात ना हो तो यहां भी शिर्क आ सकता है। हमारे और आपके दिलो दिमाग में जो ख्यालात आते हैं, ये ख्यालात इब्तिदा में ख्याल होते हैं, लेकिन अगर आदमी इन ख्यालात को कबूल कर ले, शैतान यहां से वसवसा डाल के शिरकिया बातें मेरे और आपके दिल में डाल सकता है, मेरे और आपके दिल में शिर्क की बुनियादों को परो सकता है, बो सकता है, उनकी गहराई में उतार सकता है। हमें यह सोचना पड़ेगा कि शिर्क कहां कहां से आ सकता है। और मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि ये जो हमारे और आपकी जमात के अंदर रुकिया का जो मसला आया है, रुकिया शरइया का, रुकिया शरइया
एक जायज अमल है, न सिर्फ जायज है बल्कि अल्लाह के नबी ने फरमाया जो अपने भाई का फायदा कर सकता है, मन इस्तता यनफअ अखाहु फल्यफअल, रुकिया के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया ये होना चाहिए। लेकिन जिन भाइयों ने इस रुकिये को अपने लिए जरिए माश बनाया हुआ है, इनमें से बाज हजरात के बारे में ऐसी खबरें मिलती हैं कि सिर्फ सामने वाले का दिल जीतने के लिए, सामने वाले का दिल जीतने के लिए उसके अंदर अपनी यूं समझिए महारत की धाक बिठाने के लिए ऐसी तवहुम परस्ती के बीज बोए जा रहे हैं। बदकिस्मती से जो बातें हम पहले बरेलवी तबके के अंदर सुना करते थे, हम आमिल कामिल के से ताल्लुक रखने वालों के अंदर सुना करते थे, आज हमारे और आपके घरानों के अंदर ऐसी बातें डराती नजर आती हैं। वक्त इजाजत नहीं देता, वरना मैं आपके सामने मिसालें दे दे के बता सकता हूं कि कैसे कैसे तवहुम परस्ती और तवहुम परस्ती की बुनियाद पे शिर्क की बुनियादें हमारे और आपके समाज में दर आ रही हैं। एक साहब दाखिल हुए घर में, मेरे सामने का वाकया, घर में दाखिल हुए, दाखिल होने के साथ दाएं देखे बाएं देखे, इस कोने देखे उस कोने देखे, कहने लगे आपके घर में बड़ा सख्त जादू है, बड़ा सख्त जादू आपके घर के अंदर है। मैंने उनसे पूछा अभी तो आप दाखिल हुए, किनारे देख के आप बता रहे गैबदान है, आप गैबदान है जो ये कह रहे हैं। कहने लगा नहीं, ये गैब की बात नहीं, ये तजर्बे की बात है। मैंने कहा ऐसा कौन सा इल्म है और ऐसा कौन सा तजर्बा है जो किनारे देख के आपको बताता है कि जादू है और जादू पुराना है नया है? मेरे भाइयों, ये है गैबदानी के दावे, जिसे आप शिर्क ना कहें तो फिर और क्या कहेंगे। मैंने कहा ना मिसालें अगर मैं देना चाहूं बड़ी मिसालें दे सकता हूं। बताना क्या चाहता हूं, कल्बे सलीम अपने दिल को बनाना है। सबसे पहले नंबर पे अपने घरों की खबर लो, और बात सिर्फ रुकिये तक नहीं, कोई ये ना समझे बात रुकिये की नहीं, सिर्फ वहां तक नहीं। ये जो हमारे और आपके घरों में टीवी सीरियल चलाते थे ना, अब तो मोबाइल के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर, फेसबुक के अंदर पता नहीं जो जो वीडियो चलते, उसमें आने वाले शिरकिया जुमले, शिरकिया गाने, शिरकिया कलिमात, शिरकिया अफकारो नजरियात। भाइयों आपको मैं बताऊं, हजरत इब्राहिम की मैंने बात की, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआओं में से एक दुआ ये थी, वजनुबनी व बनी अन नअबुदल असनाम। सारी जिंदगी तौहीद के लिए लड़ते रहे, सारी जिंदगी शिर्क को मिटाते रहे, बुतों को तोड़ते रहे, लेकिन फिर भी अल्लाह से दुआ करते, अल्लाह ताला मुझे और मेरे बच्चों को इस बात से बचा लेना कहीं हम बुत परस्ती की तरफ ना चले जाएं। मैं आपको बताऊं, ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ताबीईन में से एक इब्राहिम तैमी हैं। उन्होंने जब ये आयत करीमा पढ़ी तो उन्होंने कहा वमन यअमनुल बलाअ बअदका या इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम आप इमाम तौहीद होकर अगर आप इसके सिलसिले में खौफ महसूस कर सकते हैं तो भला आपके बाद मुतमईन कौन हो सकता है कि मेरी तौहीद मजबूत है। भाइयों, पहली बात, कल्बे सलीम वो दिल है जो शिर्क से पाक हो, और शिर्क से पाक होने के लिए शिर्क की शक्लों, शिर्क के अंदाज और रास्ते कहां कहां से शिर्क आ सकता है, इस पे नजर रखने वाले मुसलमान बनो। ऐसी नजर अपनी रखो कि कहां कहां से शिर्क आता है, कहां कहां से हमारे और आपके समाज में गलत बातें आती है, इन पे नजर रखकर अपने आप को शिर्क से बचाने की कोशिश करो। पहली सलामती दिल की शिर्क से सलामती, और वो शिर्क अकबर हो कि शिर्क असगर हो, रियाकारी। इसलिए कि याद रखना, आदमी शिर्क असगर में एहतियात न करे तो यहीं से शिर्क अकबर के दरवाजे खुलते हैं। शिर्क असगर अल्लाह के नबी ने रियाकारी को बताया, अगर रियाकारी पे आदमी काबू ना पाए तो पता नहीं कब यही रास्ता शिर्क अकबर तक ले जाए। अपने दिल की सलामती में सबसे पहले नंबर पर शिर्क से अपने आप को पाक रखने की फिक्र हमारे और आपके समाज में होनी चाहिए। सुभान अल्लाह, कभी कभार तमन्ना होती है, हमारी उन माओं की याद आती, हमारे बुजुर्गों की याद आती है, बच्चा बीमार है, सारा खानदान कहता है इसका कितना इलाज करा चुकी हो, शिफा नहीं मिल रही है, जरा उस आमिल के पास चले जाओ, जरा उस कामिल के पास चले जाओ, वो कुछ नहीं करेगा, सिर्फ कुरान की आयत लिख कर देगा। हमारी माएं कहा करती थी बच्चा मर जाए गवारा है लेकिन उसके दरवाजे तक नहीं जाओगी। ये तौहीद फिर पैदा करो भाइयों, ये असल दिल की सलामती, यह है कल्बे सलीम जिसका रिश्ता पूरी तरह से अल्लाह ताला से जुड़ा होता है। इन्नी खलक़तु इबादी कुल्लहुम हुनफा,
मैंने अपने बंदों को सबको ऐसा ही मुवाहिद पैदा किया था कि वह सबसे रुख मोड़ कर अल्लाह की तरफ एक तरफ मुतवज्जे थे। फजतालतहुमुश शयातीन, लेकिन शैतानों ने उनको उनके हाल पे नहीं छोड़ा, उछक लिया, इनको उठा कर ले गए। और यही सूरत हाल मेरे और आपके साथ सुबह शाम होती है। मेरी और आपकी तौहीद पर शैतान कभी वसवसों के रास्ते, और कभी इंसानों में से शयातीन के रास्ते, कभी जिन्नों में से शयातीन के रास्ते मेरी और आपकी तौहीद को छीनने की कोशिश करता है। इस तौहीद की हिफाजत की जिम्मेदारी सबसे पहले आप पर है। कल्बे सलीम वो है जो शिर्क से पाक हो, और शिर्क से पाक होने का मतलब यह है कि इन नजाकतों को नजर में रखकर जीने वाले मुसलमान बनो। दूसरी बात जो इमाम बगवी ने कही, शक से पाक हो। शक, ईमान की कोई भी बात, कुरान और सुन्नत की कोई भी बात, अल्लाह ताला की बताई हुई कोई भी बात, प्यारे नबी की बताई हुई कोई भी बात हमारे और आपके लिए इस कदर ज्यादा यकीनी होती है कि हमें फिर दुनिया की कोई चीज अपने इस यकीन में मुतज़लज़ल होने नहीं देती है। आप ये बात याद रखें, हमारे और आपके जमाने में इस वक्त खास तौर पर सोशल मीडिया का जो जमाना है, इस जमाने में शुकूक और शुबहात पैदा करने वाले लोग बहुत सारे हैं। तौहीद के बारे में आपके शुकूक और शुबहात पैदा किए जाएंगे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत और आपकी सीरत के बारे में, कुरान के बारे में, और ये बड़ी बड़ी बातों में नहीं भी होगा तो तफसीलात में आप जाकर देखेंगे, आपको कुरान की बयान करदा हकीकतों के बारे में शुबहात का सामना होगा, अहादीस में आए हुए मसाइल के बारे में शुबहात का सामना होगा, सहाबा किराम के बारे में शुबहात फैलाए जा रहे हैं, फैलाए जाएंगे, और दीन की बहुत सारी हकीकतों के बारे में शुबहात फैलाए जाएंगे। लोग ये भी कहेंगे म्यूजिक हराम नहीं है, वो जो हराम उस वक्त होती है जब वो अल्लाह के दीन से गाफिल करे, अगर गाफिल ना करे तो म्यूजिक जायज भी हो सकता है। शुबहात ही शुबहात है। आप यकीन करो, शायद हमसे पहले वाला जमाना हमारे बुजुर्गों का शुबहात के बाब में उतना ज्यादा सख्त नहीं था जिस कदर ज्यादा सख्त आजमाइश आज आपकी हो रही है। एक्स मुस्लिम के नाम पे मुर्तदीन या मुर्तदीन नुमा जो लोग हैं, वो लोग बाकायदा शुबहात फैला रहे हैं, और उनका तो मसला एक्स मुस्लिम का है। और जो मुसलमान अपने आप को कहते हैं, सही बुखारी का हवाला देकर शुबहात फैलाते हैं, कुरान की आयत पढ़कर शुबहात फैलाते हैं, कुरान की आयत पढ़कर आपके अंदर शुबहात फैलाते हैं। मैंने कहा ना, वक्त इजाजत नहीं देता, वरना इसकी भी मिसालें देता। कैसी कैसी लोगों ने मिसालें दी हैं, मैं आपको बताऊं। यूट्यूब पर एक है आदमी, नाम नहीं लूंगा, एक यूट्यूब पर आदमी ऐसा है जो कुरान पढ़कर बताता है। उसका अपना मानना यह है कि सारी आसमानी किताबें असल में एक ही किताब, तौरात इंजील जबूर कोई अलग किताब नहीं, एक ही किताब है, सारी आसमानी किताबें एक ही हैं, और कुरान पढ़कर यह बताता है। कैसे बताता होगा आपको समझ में शायद ना आए, लेकिन जो लोग जानते हैं, मैं आपको बताऊं, लाखों में उसके सुनने वाले, शुबहात फैलाने वालों के पीछे आज सही बातें बताने वालों से ज्यादा सुनने वाले शुबहात फैलाने वालों। और आपका मेरा मसला असल में यही है, जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो यही है कि याद रखो, हमारा और आपका मनहज है, सलफ़ सालिहीन का तरीका यह है कि जहां पता चले ये शुबहात हैं, ये एतराजात हैं, ये इस्लाम पर हमलावर हो रहा है, ये मिजाज मत रखो, देखना चाहता हूं वो क्या बोल रहा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फितनों की पेशिनगोई की, तो आपने कहा ऐसे भी फितने आएंगे कि जो झांक कर देखेगा ये फितना उसी को लपक लेगा। ऐसा लगता है कि अल्लाह के नबी की वो पेशिनगोई इसी किस्म की सूरत हाल के लिए थी। कितने ऐसे नौजवान मैं जानता हूं, वो पहले कहते थे नहीं, हमें उनको मालूम है वो गुमराह है, बस देखना चाहते हैं वो क्या बोल रहा है। और कल की बात मैं आपको बता रहा हूं, कल की बात बता रहा हूं, एक नौजवान आलिम दीन मुझसे मुलाकात हुई कल। उन्होंने तन्हाई में मिलकर मुझसे एक बात कही। मैं जानता था, बहुत पहले से मैं उनको मना कर रहा था कि फला आदमी को आप मत सुने। उन्होंने कहा नहीं, मेरी नीयत यह है कि मैं उसको सुनूंगा, उसके शुबहात का जवाब तैयार करूंगा और लोगों को उसके शुबहात से आगाह करूंगा। कल मिलकर वो मेरे सामने कह रहे हैं, आम आदमी नहीं, आलिम दीन की बात कर रहा हूं, वो मुझसे कह रहे हैं दो बातें देख रहा हूं। पहली बात तो ये कि इनकी अब दिल में पुराने दौर के उलमा पर एतमाद बाकी नहीं रह गया है मेरा, और दूसरी बात यह है उलमा के सिलसिले में मेरे दिल में एहतराम अब बाकी नहीं रह गया है। मैंने कहा अब आपके लिए हराम है कि आप लोगों को बचाने के लिए भी वो चीज पढ़े। आपके लिए पहली शर्त यह कि आज के आज रुकिए आप भाइयों। शुबहात का बाब क्या है मालूम है आपको?
मैं आपको बताना चाहूं, सलफ सालिहीन में इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बिदअती आया, उसने आकर कहा मेरी कुछ बात सुन ले। कहा नहीं सुनूंगा तुझसे। कहा ठीक है कुरान की आयत सुन ले। कहा तुझसे कुरान की आयत भी नहीं सुनूंगा, बिदअती है। कहा क्यों? कहा इसलिए कि तू अगर पढ़कर सुनाएगा तेरी तिलावत से मुतासिर हो जाऊंगा, बईद नहीं कुरान पढ़ने में तू कहां कुछ करे कि उसकी वजह से मेरे दिल में शुबहात पैदा हो जाए। मेरे भाइयों, कल्बे सलीम कहां से आएगा? शुकूक से दूर रहो, शुकूक से दूर रहो। यह तरीका नहीं है। कोविड में आपने देखा ना, नहीं मैं पहले कोविड का बीमार बनूंगा फिर इलाज करके मैं शिफा पाऊंगा। कभी किया आपने? जान बचाने के लिए महीनों घर में कैद रहे, ईमान बचाने के लिए शुकूक से दूर नहीं रह सकते। अल्लाह के बंदो, मनहज ये है, सलफी मनहज ये है, अहले हदीसों का ये तरीका है, मुहद्दिसीन किराम का ये तरीका है। वो कभी अहले बातिल शुबहात के फैलाने वालों की बातें नहीं सुना करते। जो मसला भी उनको जरूरी होता है वो किताब और सुन्नत की तालीमात की रोशनी में पढ़ते और सीखते हैं। याद रखो, कल्बे सलीम वो दिल है जो शिर्क से पाक हो, शुकूक से पाक हो। और शक से पाक होने के लिए एक तरफ तो जो शुकूक फैलाने वाले उनसे दूर रहना पड़ेगा, और दूसरी तरफ याद रखना शैतान आपके अपने दिल में वसवसे डालेगा। आप नहीं जाते, खुद ब खुद वसवसे आप तक आते हैं। आप किसी शुबहात फैलाने वाले के पास नहीं जाते, उनमें से कोई आप तक आता है, आपके दिल में कोई बात डाल देता है। आपको करना क्या चाहिए? बीमार होते ही आप किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं ना। दिल में जब कभी ऐसा कोई वसवसा आए ना, तो सबसे पहले मुस्तनद और मोतबर उलमा के साथ बैठना सीखो। मैं आज आपको एक बात कहना चाहता हूं भाइयों, मैदान देख कर ये बात मैं कह रहा हूं कि हमारे नौजवानों की एक बड़ी तादाद ऐसी है, वो शुबहात फैलाने वालों की गुफ्तगू घंटों सुनेंगे यूट्यूब पे बैठकर, लेकिन वही मसला 10 मिनट के लिए आकर आलिम दीन से नहीं पूछेंगे। 6 महीने गुजर जाते हैं, एक बिदअती को सुनते हैं, लेकिन पहले दिन जो बात सुनी लगी कि कुछ सही लग रही, लेकिन आदमी गलत है मालूम है, उस मसले की तहकीक पहले दिन कर लेते, पहले ही दिन आलिम दीन बता देता कहां झोल है, कहां डंडी मारी जा रही, कहां धोखा दिया जा रहा है, आपकी समझ में आ जाता पहले दिन। लेकिन 6 महीने तक क्या होता है? सुनता है, बाज बातों का खुद इनकार करता है, बाज बातों को कबूल कर लेता है। अब उसके बाद उसका दिल इस आलिम दीन तक आने के लिए तैयार नहीं होता। भाइयों, अपने आप को और अपने दिल को कल्बे सलीम बनाना चाहते हैं तो ये दूसरी अहम बात याद रखना, जब कभी दिमाग में कोई शुबहा खुद आए या कोई शुबहा डाल दे, फौरन मुस्तनद मोतबर अहले इल्म के साथ बैठो, कुरान की आयत में देखो, अहादीस रसूल में देखो, वो पढ़ाएंगे, वो बताएंगे, वो समझाएंगे कि इसमें शुकूक और शुबहात कहां से आ रहे। इससे अपने दिल को पाक करो, तभी तुम्हारा कल्बे सलीम है। और मैं आपको बताऊं, इमाम बगवी ने यह तफसीर करने के बाद एक बड़ी अहम बात लिखी। वो कहते हैं दिल की सलामती में असल सलामती यही है, बाकी गुनाहों से सलामती का जो मसला है वो कोई बड़ा मसला नहीं है। हालांकि मैं उसका भी जिक्र करूंगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि ये सलामती कितनी अहम है। आपका दिल कहे मेरा दिल साफ है सारी दुनिया के लिए, काफी नहीं। असल सलामती यह है कि दिल में ऐसी तौहीद रहे, दिल में ऐसा ईमान रहे कि न शिर्क जगह पाए, न शक कहीं से दर आए, कोई इम्कान न रहे न शिर्क के लिए न शक के लिए। अपने अंदर वाकई मानों में ऐसा ईमान पैदा करो। भाइयों, ये 2 किस्म की सलामती हुई। शिर्क से दिल को सब महफूज होना चाहिए, शक से दिल को पाक होना चाहिए, और तीसरे नंबर पर बिदअतों की मोहब्बत से आदमी के दिल को पाक होना चाहिए। दिल की सलामती में तीसरे नंबर पर जो सलामती आती वो है बिदअतों की मोहब्बत से दिल का पाक होना, साफ होना। आपका मेरा दिल बिदअतों की मोहब्बत से पाक हो। याद रखो मेरे भाइयों, इल्म जितना आप हासिल करेंगे सुन्नत उतनी आपको मालूम होगी। इल्म से जितना आप दूर रहेंगे, बिदअतें सुन्नत के नाम पे आपकी मेरी जिंदगी में बाकी रहेंगी। आप और मैं हो सकता है बड़ी बड़ी बिदअतों में मुब्तला ना हो जैसे समाज के दूसरे लोग नजर आते हैं, लेकिन छोटी मोटी बिदअतें मेरे और आपके अंदर भी जगह बना सकती हैं अगर इल्म से रिश्ता माना रहे। याद रखो, बिदअतों से आदमी का दिल पाक होना चाहिए, बिदअतों की मोहब्बत से हमारा और आपका दिल पाक होना चाहिए। असल सलामती दिल की यह है कि बिदअतों से भी दिल पाक रहे। अब मैं आपको बताऊं,
माह ज़िलहिज्जा खत्म होगा, अब इसके बाद मुहर्रम का महीना शुरू होगा। कभी अपनी दादी नानी से पूछ ले, आपकी तरबियत अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद के माहौल में हुई है, शायद आपको उतना अंदाजा नहीं, लेकिन अपनी दादी नानी, पुरानी औरतें, हमारे बुजुर्ग जो पुराने, उनसे पूछ ले, इतनी बिदातें हैं, ऐसा लगता है कि रमजान के महीने या बकर ईद के ज़िलहिज्जा के महीने से ज्यादा अफजल मुहर्रम का महीना हो गया है। ये जो बिदातों का रिवाज है और बिदअतों के लिए दिलों में मोहब्बत है और बिदअतों के लिए दिफा का जज्बा है, बिदअतों को फैलाने का जज्बा है और बिदअतों को न करने वालों पे तंज और तारीज का जो जज्बा, ये खत्म होना चाहिए। बिदअतें जब तक रहेगी आदमी का दिल बीमार रहेगा। याद रखें, तीसरी सलामती जो दिल को होनी चाहिए, बिदअत की कोई हमदर्दी इंसान के दिल में नहीं होना चाहिए, कोई हमदर्दी बिदअत के लिए दिल में नहीं होनी चाहिए। आदमी बिदअत से उतनी ही नफरत करे जितनी ज्यादा किसी भी और गुनाह से करता है, बल्कि उससे ज्यादा करे। क्यों? इसलिए कि सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा, अल बिदअतु अहब्बु इला शैतानी मिनल मासिया, शैतान के नजदीक बिदअत गुनाह से ज्यादा पसंदीदा है। भाइयों, शिर्क से पाक हो, शक से पाक हो, बिदअतों की मोहब्बत से दिल पाक हो, ये तीन बुनियादी बातें। लेकिन इन तीन बुनियादी बातों के साथ साथ मेरे और आपके दिल की सलामती के लिए दिल का और कुछ चीजों से भी पाक होना जरूरी। उनमें से एक बड़ी अहम बात है, गुनाहों की मोहब्बत से दिल पाक होना चाहिए। गुनाहों की मोहब्बत मेरे और आपके दिल में नहीं होनी चाहिए। देखिए, कुरान में अल्लाह ताला ने दो बड़ी अहम बातें बयान की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में भी उनका तज़किरा फरमाया। पहली बात तो यह कि फितरतल्लाहि लती फतरन्नास अलैहा, अल्लाह ताला ने हर इंसान को फितरत इस्लाम पर पैदा किया और इस्लाम नेकी से मोहब्बत करना और बुराई से नफरत करना है। दूसरी बात अल्लाह ताला ने फरमाई, वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फी क़ुलूबिकुम व कररहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान, कि अल्लाह ताला ने ये जो फितरत में फितरत इस्लाम में बात रखी थी, यही बात अल्लाह ताला ने तालीमात इस्लाम वही इलाही के जरिए भी बताई। कैसे? अल्लाह ने ईमान और ईमान की हर बात को महबूब बनाया और कुफ्र की बात को, फिस्को फुजूर की बात को, अल्लाह ताला की नाफरमानी की बात को अल्लाह ताला ने नापसंदीदा बनाया। इसका मतलब यह हुआ कि दिल की असल कैफियत यह है कि ईमान और नेकी की कोई भी बात आती है, दिल उसकी तरफ खींचता है, दिल उसकी तरफ माइल होता है, दिल इसको पसंद करता है। और इसके मुकाबले में जब कभी गुनाह की, कुफ्र की, नाफरमानी की कोई बात आती है, दिल उसको नापसंद करता है, इंसान उसको नापसंद करता है। यही असल कैफियत है। लेकिन मेरे भाइयों, आज मैं और आप अपने दिल से पूछें, किसी और से नहीं, अपने आप से पूछें, किसी और से नहीं, अपने गिरेबान में झांक कर देखें, कहीं और नहीं। क्या वाकई मानो में हम और आप बुराइयों से नफरत करने वाले हैं, या कम से कम कुछ बुराइयों की मोहब्बत मेरे और आपके दिल में आ गई है? मैं आज अगर आपसे पूछूं, आप में से किसी को कुफ्र से मोहब्बत है, कुफ्र आपको पसंद है? सब कहेंगे नहीं, कुफ्र से नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर वही मैं आपको पूछूं, यूट्यूब खोलकर या फेसबुक खोलकर कोई वीडियो देख लें, कोई फिल्म देख लें, कोई सीरियल, पसंद आता है कि नहीं आता है? सच बताएं, पसंद आता है कि नहीं आता है? अक्सरियत नहीं तो कम से कम बड़ी तादाद ऐसी है जो ऐसे गुनाह की बहुत सारी बातों को पसंद करती है। इसका मतलब क्या हुआ? वो जो अल्लाह ताला ने बुराई के लिए, गुनाह के लिए नफरत अल्लाह ने फितरत में रखी थी, वो जो अल्लाह ताला ने बुराई को नापसंदीदा बनाया था, ये कैफियत मेरे और आपके दिल की बदल गई। अब मेरा और आपका दिल बीमार है, मेरा और आपका दिल ऐबदार है, मेरा और आपका दिल पाक नहीं रह गया, मेरा और आपका दिल साफ नहीं रह गया, हम बीमार हो गए। हमें अपने दिल की सलामती की ऐसी फिक्र करने की जरूरत है कि दिल फिर से एक मर्तबा हर बुराई से नफरत करने वाला हो जाए, हर गुनाह को नापसंद करने वाला हो जाए और हर नेकी से मोहब्बत करने वाला हो जाए। यह बड़ा अहम मसला है। मेरे और आपकी जिंदगी में बुराइयों से मोहब्बत और नेकियों को पहाड़ या बोझ समझने की जो कैफियत है ना, ये इस बात का सबूत है कि मेरा और आपका दिल बीमार है और हम और आपको अपने दिल को साफ करने की जरूरत है। हम और आपको अपने दिल की सफाई की फिक्र करने की जरूरत है। जब तक ये नहीं करेंगे, आप यकीन माने मेरा और आपका दिल पूरी तरह से पाक नहीं होगा।
और अगर कोई आदमी ये समझता है कि ये मामला सिर्फ गुनाहों का है, गुनाह अल्लाह ताला माफ कर ही देता है, तौबा से माफ हो जाते हैं, तो फिर आपकी इत्तिला के लिए अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैहि की एक बात रखता हूं। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैहि ने बड़ी तफसीली बात कही है, इग़ाथतुल लफ़ान उनकी किताब है, इसमें उन्होंने शैतान इंसान को कैसे शिकार करता है, शैतान इंसान को शिकार कैसे करता है, वो रास्ते बड़ी तफसील के साथ समझाएं। मुजमल जो खुलासा उन्होंने जो बताया उसका मुख्तसर सी बात मैं आपके सामने रखता हूं। इब्न क़य्यिम ने जिक्र किया है कि सबसे पहले शैतान कोशिश करता है कि इंसान शिर्क और कुफ्र में मुब्तला हो जाए। क्यों? इसलिए कि शिर्क और कुफ्र में मुब्तला होगा तो हकीकी बर्बादी, हमेशा का जहन्नमी, बगैर तौबा के मर गया तो मुखल्लद बिन्नार, हमेशा का जहन्नमी होगा। अगर कामयाब हो गया तो ठीक, नहीं होता तो जरा नीचे उतरकर बिदातों में मुब्तला करने की कोशिश करता है। कामयाब हो गया तो ठीक, अगर उसमें भी नाकाम हुआ तो फिर कोशिश करता है कि बड़े बड़े गुनाहे कबीरा में मुब्तला कर दे। इब्न क़य्यिम ने तफसील और भी लिखी है, नेकियों का भी तज़किरा किया। मैं सिर्फ इन 3 बातों को आपके सामने लेता हूं। ये बात बताने के बाद इब्न क़य्यिम ने आखिर में लिखा है, शैतान अगर इंसान को गुनाहों में भी मुब्तला करने में कामयाब हो जाता है तो ऐसा नहीं कि उसी पे राजी होकर छोड़ देता है, वो रफ्ता रफ्ता गुनाहों से बिदातों की तरफ ले जाता है। जिस तरह आदमी गुनाहों के करते करते गुनाहों की कबाहत भूल जाता है, गुनाहों का जो डर होना चाहिए अल्लाह ताला से वो कम होता जाता है, ऐसे ही उसके दिल में बिदातों के लिए जो सख्त जज्बा है वो भी कमजोर करता जाता है। फिर वो अहले बिदअत के साथ उठने बैठने लगता है, उनके साथ दोस्ती भी करता है, रफ्ता रफ्ता बिदअत की नफरत दिल से जाती है और अल्लाह महफूज रखे, वरना वो नहीं तो कम से कम उसकी अगली नस्ल बिदअती बनकर रहती है। याद रखो मेरे भाइयों, कल्बे सलीम के हवाले से ये बात बड़ी अहम है कि मेरे और आपके गुनाह मुझको और आपको बिदअती भी बना सकते हैं और अल्लाह ना करे मुझको और आपको शिर्क और कुफ्र तक भी ले जाने का सबब बन सकते हैं। इसलिए गुनाह को सिर्फ गुनाह ना समझो, इन गुनाहों को अपनी बर्बादी का रास्ता समझकर गुनाहों से परहेज करो। भाइयों, मैंने कहा दिल की सलामती यह है कि दिल को गुनाहों की मोहब्बत से भी पाक होना चाहिए। मुसलमान किसी गुनाह को पसंद नहीं कर सकता, मुसलमान किसी गुनाह को पसंद नहीं कर सकता। मैं और आप कर रहे हैं तो इसका मतलब मेरे और आपकी ईमान की कमजोरी है, लेकिन मुझको और आपको जैसा मुसलमान बनना है वो ऐसा मुसलमान है, वो मुसलमान जो किसी भी गुनाह को पसंद नहीं कर सकता। अल्लाह के हुक्म के बाद हर पसंदीदा बात भी उसके नजदीक नापसंदीदा हो जानी चाहिए। ये इस्लाम ने सिखाया मुझको और आपको। हाज़रीन गिरामी, मैंने कहा ये चौथी किस्म की सलामती, दिल शिर्क से पाक हो, शक से पाक हो, बिदात की मोहब्बत से पाक हो, और चौथे नंबर पर मैंने कहा गुनाह की मोहब्बत से पाक हो। और 5वें नंबर पर अहम बात आपके सामने जिक्र करूंगा, वो है आदमी का दिल दूसरे मुसलमानों के लिए, इंसानों के लिए पाक हो। कल्बे सलीम जिसकी सलामती कमाल को पहुंचती है वो ऐसा दिल होता है जो दिल सबके लिए पाक और साफ होता है। भाइयों, इंसानों के लिए अपने दिल को पाक रखने के 2 दर्जे हैं, याद रखना। 2 दर्जे हैं, इन 2 दर्जों को अच्छी तरह समझकर याद रखना। पहला दर्जा यह है कि मेरा और आपका दिल सारे लोगों के लिए खैर खाही से भरा हुआ, मेरे दिल में किसी के लिए हसद नहीं। आपके पास दौलत है, आपके पास शोहरत है, आपके पास ओहदा है, आपके पास खानदान है, आपके पास अल्लाह ने दुनिया की खूबसूरती दी, आपके पास अल्लाह ने कुछ और दिया, कुछ भी दिया है अल्लाह ने दिया, अल्लाह की नेमतें हैं। मुझे तुमसे कोई हसद नहीं, जलन नहीं, जरा बराबर मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं आप में से किसी के लिए गलत जज्बा नहीं रखता, आप में से किसी के लिए कोई गलत किस्म का जज्बा मेरे दिल में ना हो। दिल इतने ज्यादा मोमिनों के लिए नरम रखो, इस कदर ज्यादा नरम रखो कि आदमी आपके करीब आए तो अपना दिल, आपके दिल को अपना घर समझे, वो महसूस करे कि आपने उसे अपने दिल के अंदर जगह दी है। इतनी मोहब्बत, अपनाइयत, ऐसा खुलूस, ऐसी अपनाइयत अपने एक मोमिन भाई के लिए पैदा करो। दिलों की सलामती का पहला दर्जा यह है कि मेरा दिल किसी भी मुसलमान के लिए पाक है, साफ है, मेरे दिल में किसी के लिए कोई गलत जज्बा नहीं। ये मेरे और आपके अंदर होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े क़ियामत जन्नत में कुछ ऐसे लोग भी दाखिल होंगे जिनके दिल परिंदों के दिल जैसे होंगे, जिनके दिल परिंदों के दिल जैसे होंगे।
अहले इल्म ने, शारिहीन ने इस हदीस की शरह करते हुए दो माने लिखे। पहला मतलब बाज़ अहले इल्म ने लिखा कि इस हदीस का मतलब यह है कि ये दिल तवक्कुल से भरे हुए दिल होंगे, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने परिंदों की मिसाल तवक्कुल के मसले में दी कि सुबह वो खाली पेट निकल के जाते, शाम पेट भर के लौटते। तो अल्लाह के नबी की इस हदीस का मतलब ये कि ये तवक्कुल करने वालों के दिल होंगे। लेकिन वहीं दीगर अहले इल्म ने कहा कि नहीं, इससे मुराद नरम दिल मोमिन है। वो मोमिन जिसका दिल दूसरे मोमिन के लिए हमेशा नरम होता है, वो मोमिन जिसका दिल अल्लाह ताला की नसीहत के लिए नरम होता है, वो मोमिन जिसका दिल अल्लाह ताला की किताब की तालीमात को सुनकर नरम पड़ जाता है। नरम दिल आदमी अगर हो, देखो याद रखो, नरम दिल होना कमजोरी नहीं। आप बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है, और जहां जहालत होती है वहां यह गलतफहमी ज्यादा पनपती है। आदमी का नरम दिल होना उसकी बुज़दिली और कमजोर होने की अलामत है, नहीं। नरम दिल आदमी सबसे पहले अपने नफ्स से लड़ने वाला मुजाहिद है। वो अपने नफ्स पे वो ज़ेर करके जीता है। उससे बड़ा पहलवान दुनिया के अंदर कोई नहीं। याद रखना मेरे भाई, अपने आप को नरम दिल बनाओ। दुनिया के लिए मोहब्बत, खुलूस, खैर खाही, अपने सब की तरफ से लोगों के लिए भलाई का जज्बा, हमेशा अपने दिल को इससे आबाद रखो। ये पहला दर्जा है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपने बड़ा मशहूर वाक़या सुना, अल्लाह के नबी ने 3 दिन तक मुसलसल एक सहाबी को जन्नती होने की खुशखबरी सुनाई। अल्लाह के नबी ने मजलिस में बैठे हुए नबी ने फरमाया अभी जन्नती आएगा। सहाबा ने देखा कि एक अंसारी नौजवान आता है, नमाज और रकात पढ़ता है, अल्लाह के नबी से मुलाकात करके चला जाता है। ऐसा वाक़या 3 बार होता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सोचते हैं, देखते हैं, ये जानना चाहते हैं ऐसी क्या नेकी इस बंदे के पास है। उसके पास जाते हैं, 3 दिन तक क़ियाम करते हैं, और 3 दिन क़ियाम करके भी देखते ये हैं बुनियादी जो वाजिबात है उनका पाबंद है, उससे आगे कोई गैर मामूली नेकी तो नजर नहीं आती। 3 दिन देखकर भी जब समझ में नहीं आई तो फिर हजरत अब्दुल्लाह इब्न अम्र ने पूछा उससे कि तुम्हें अल्लाह के नबी ने जन्नती होने की 3 मरतबा खुशखबरी दी, यानी 3 मरतबा खुशखबरी दी तो तुम ही निकल कर आए। मैं देखने आया था कि तुम्हारी ऐसी कौन सी नेकी है कि जिसके बदले में अल्लाह के नबी ने खुशखबरी सुनाई है। और मैंने 3 दिन देखा, कोई अमल मुझे वैसे गैर मामूली नजर नहीं आया। क्या ऐसा भी कोई अमल है जो मेरी नजरों में ना आ सका हो, तुम करते हो? उस आदमी ने कहा, अंसारी नौजवान ने कहा कि नहीं, मेरा अमल वही जो आपने देखा, आपने जो देखा वही मेरा अमल है। लेकिन अलबत्ता एक मेरी आदत है, रोजाना शाम में जब मैं सोता हूं तो मेरे दिल में किसी मुसलमान के लिए बुग़्ज़ और हसद नहीं होता है। मेरा दिल साफ होता है सबके लिए। मेरे भाइयों, दिल की सलामती, क़ल्ब सलीम के मामले में लोगों के लिए ऐसा सलामती वाला दिल हमारा और आपका होना चाहिए। और मैंने कहा दिल की सलामती लोगों से जुड़ी हुई, इसका एक दूसरा दर्जा भी है। मैं आपको बताऊं, ये पहला दर्जा आप और मैं कैसे अपने अंदर पैदा कर पाएंगे। इसको पैदा करने के लिए हम और आपको ये बात का ख्याल रखना होगा जो मैं आखिर में आपके सामने जिक्र करूंगा। मैंने कहा दूसरा दर्जा है। वो दूसरा दर्जा क्या है? जिसने मुझे गाली दी, जिसने मुझे बुरा भला कहा, जिसने कभी मेरा नुकसान कर दिया, इस्लाम आपको एक बात कहता है, गुस्सा है, बदला लेना चाहते हो, बराबर का बदला ले सकते हो, छूट है इस्लाम में। गाली दी, वही गाली पलटा के देना चाहो, वही गाली, बड़ी नहीं, दूसरी नहीं, वही गाली उतनी ही तुम चाहो तो दे दो, इजाजत है। तुम्हारे सीने की जो आग है उसे ठंडा करना चाहते हो, ठंडी करना चाहते हो, कर लो, उसके बराबर करो। लेकिन अगर ये ना करके मुआफ कर दो तो ये ज्यादा बेहतर है। आपने बराबर का बदला नहीं लिया तो फिर आपको करना क्या चाहिए? 2 रास्ते आपके पास। एक रास्ता यह है कि मुआफ कर दें, कि इख्तियार नहीं, मुआफ कर दिया या अल्लाह के हवाले करके छोड़ दिया। और दूसरा रास्ता यह कि उसकी नफरत, उसकी दुश्मनी अपने सीने में रख के आप पालते रहें। किताब और सुन्नत की तालीमात को आप पढ़ के देखें। इस्लाम ने आपको इस बात से मना किया कि किसी की दुश्मनी को अपने दिल में बिठाए हुए उसे पालते रहो, सालहा साल तक उसे आगे बढ़ाते रहो। इस्लाम ने इससे सख्त मना किया है। मेरे भाइयों, आप ये बात याद रखना, ये जो दुश्मनियां दिल में पाली जाती हैं, ये जो नफरतें जो सीने में बसा के रखी जाती है, दुश्मन का भला बुरा करे ना करे, सबसे पहले हमारा अपनी जिंदगी का चैन और सुकून छीन लेती हैं।
इसलिए अपने दिल को साफ करो, पाक करो। अपने दिल के अंदर कभी किसी के लिए नाराजगी का जज्बा न रखो। ये दुश्मनी सबसे पहले आपका अपना नुकसान करती है। अपने दिल को इससे पाक करने की कोशिश करो, पाक रखने की कोशिश करो। और बात आगे मैं बताऊं, आप इस्लामी शरीयत ने आपको और मुझको ये सिखाया कि अगर मसला हमारे इख्तियार में नहीं, हम बदला नहीं ले पा रहे हैं, अल्लाह पे छोड़ दो, लेकिन अपने दिल को साफ रखो। तुम्हारे अपने ईमान की सलामती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। भाइयों, ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। मैं बोल रहा हूं तो आपको सुनने में आसान लगेगा और हो सकता है बोलने में भी मुझे आसानी हो, लेकिन जब हम पे गुजरती है तो हमें मालूम है। लेकिन आपको मालूम है इस पे अल्लाह ने वादा कितना बड़ा किया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, माई आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वालिद मोहतरम है ना, जालिमों ने, मुनाफिकों ने माई आयशा पे इल्जाम लगा दिया। और कैसा इल्जाम लगाया जालिमों ने? शरीफ आदमी के लिए इज्जत से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। ईमान के बाद अगर दुनिया के अंदर सबसे बड़ी दौलत है, एक शरीफ आदमी की इज्जत आबरू होती है। माई आयशा पे इल्जाम लगा दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक के लिए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए, हजरत आयशा के लिए, मोमिनों के लिए, मुसलमानों के लिए, सबके लिए तकलीफ दे चीज। मुनाफिकों ने शुरुआत की, मुनाफिकों ने ही से फैलाया। लेकिन अल्लाह की मर्जी के 3 अच्छे सहाबी जो मुनाफिक नहीं थे, 2 सहाबा और 1 सहाबिया, इसमें प्रोपेगेंडे के जद में आके शामिल हो गए। कहीं सुनी हुई बात लोगों में उन्होंने भी कह दी। उनमें से एक हजरत मिस्ताह इब्ने असासा भी है। ये मिस्ताह इब्ने असासा हजरत अबू बकर के भांजे रिश्तेदार हैं, अपने करीबी, और उसके साथ साथ कम है, माली एतबार से कम हैसियत के हैं, तो उनकी रोजी रोटी का इंतजाम भी हजरत अबू बकर सिद्दीक खुद करते हैं। अब आप जरा सोचें, हम अपने आप को उस वाक़ये में हजरत अबू बकर की जगह रख कर देखें। कहना बहुत आसान है अल्लाह के बंदो, कोई ऐसा हो जो हमारा अपना घराने का, खानदान का हो, और ऐसा हो जिसका दाना पानी आप और मैं चलाते हो, और ऐसा आदमी हमको नुकसान पहुंचे, और नुकसान भी कोई छोटा नहीं, हमारे घर की इज्जत को बदनाम करने, बाजार में उछालने में शामिल हो जाए, और बताओ दिल पे क्या गुजरेगी। हजरत अबू बकर ने कसम खा ली, कसम खा ली, कहा कि आज के बाद मिस्ताह इब्ने असासा का दाना पानी बंद है, नहीं होगा, नहीं करने जारी रखूंगा। सुभान अल्लाह, देखो दिल कैसा साफ मोमिन का होना चाहिए। मोमिन को अपने कल्ब को कल्बे सलीम कैसे बनाना चाहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में ये आयत अल्लाह ताला ने उतारी, क्या प्यारा अंदाज है। देखो अल्लाह ने फरमाया, वला यअतली उलुल फज़्लि मिनकुम वस्सअ अन युतू उलिल कुर्बा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाह। जो तुम में से अहले फज़ल हैं, या तो माल वाले या फजीलत वाले, वस्सा इस्तिताअत रखने वाले, गुंजाइश रखने वाले, यानी साहिब हैसियत हैं, उनको ऐसी कसम नहीं खानी चाहिए कि वो कराबतदारों पे, मिस्कीनों पे, मुहाजिरों पे खर्च नहीं करेंगे। मिस्ताह इब्ने असासा कराबतदार भी थे, फकीर भी थे, और उसके साथ साथ मुहाजिर फी सबीलिल्लाह भी थे। अल्लाह ताला ने ये बात कही, और उसके बाद अल्लाह ने कहा, ये असल में पैगाम है। देखो अल्लाह ने कहा, वलियाफू वलियस्फहू, उनको चाहिए कि माफ कर दें, दरगुजर करें। अला तुहिब्बून अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, क्या तुम ये नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें माफ कर दे? क्या तुम्हें ये पसंद नहीं कि अल्लाह तुम्हें माफ करे? सुभान अल्लाह, बात ये थी। अल्लाह ने ऐसे, अल्लाह ताला ने ये कहा था, अबू बकर आज तुम मिस्ताह को माफ करोगे, कल अल्लाह तुम्हें माफ करेगा। ये पैगाम मेरे और आप सबके लिए। यकीनन एक समाज में रहते हुए बड़ी तकलीफ एक दूसरे से पहुंचती है, लेकिन हमारे लिए आज ये पैगाम है कि अपने दिल को साफ करो। और साफ करने का फायदा क्या होगा? आज तुम उनको माफ करो, कल रब्बुल जलाल तुम्हें माफ करेगा। और कल अगर तुम्हें अल्लाह ताला की मुआफी चाहिए तो आज बंदों को माफ करो। अला तुहिब्बून अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, क्या तुम ये नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें माफ करे? अगर चाहते हो तो माफ करो लोगों को। मेरे भाइयों, अपने दिल को पाक करो। भाइयों देखो, एक बड़ी बात कहकर मैं अपनी बात खत्म कर लेता हूं। ये जो लोगों को माफ करने या लोगों के लिए अपने दिल को साफ करने का जो मसला है ना, उसका एक ही रास्ता, एक ही हल है। वो क्या है? दुनिया और दुनिया की जितनी चीजें हैं ना, इनकी मोहब्बत अपने दिल से निकाल दो, फिर सारे लोगों से मोहब्बत भी कर पाओगे, सबको माफ भी कर पाओगे। सारी लड़ाइयां दुनिया की वजह से। खानदान में मेरा मुकाम ऊंचा है, मेरा नंबर उन्होंने दूसरा रखा, मैं आया सीधे मुंह बात नहीं की, सलाम किया हाथ नहीं मिलाए, फना मौके पे उनको बुलाया मुझे नहीं। ये दुनिया है अल्लाह के बंदो, क्या करोगे ये दुनिया लेकर? ठीक
ठीक है, देने वाले ने दे दी अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं दिया तो खैर से उसके अखलाक उसके साथ, लेकिन माफ करो लोगों को। दुनिया को अगर हकीर समझना शुरू करोगे, दुनिया वालों को माफ करना आसान हो जाएगा, वरना दुनिया की एक एक चीज को पकड़े बैठे रहोगे। याद रखो अल्लाह के बंदो, ये दुनिया के लोग ऐसे हैं, रब्बे जुल जलाल का खा पी कर उसी का हक अदा नहीं करते, मेरा और आपका क्या अदा करेंगे? आप जरा सोचो, पल पल अल्लाह के मोहताज हैं, अपने वजूद से लेकर एक एक सांस आता जाता उसके लिए अल्लाह के मोहताज हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह के बागी हैं। जिसके मोहताज हैं उसके बागी हैं, मेरे और आपके बागी नहीं होंगे ये लोग। इस दुनिया से तवक्को ज्यादा मत रखो, और जब दुनिया से तवक्कुआत को घटा लोगे ना, तो फिर अपने सीने को बड़ा कुशादा पाओगे कि लगेगा कभी ऐसा मेरा दिल इतना कुशादा है, मैं सारी दुनिया को अपने दिल के अंदर समो ले सकता हूं। कभी दिल में ऐसी मोहब्बत का जज्बा आता है कि आप कहते हैं मैं सारी दुनिया में ये मोहब्बत का जज्बा बांटना चाहता हूं। ये तजर्बा कर पाओगे कब? जब दुनिया को अपने दिल से निकाल बाहर करोगे। हाज़रीन गिरामी, बात जो मैंने कही, पांचवी बात, दिल को जिससे खाली होना चाहिए, पाक होना चाहिए, वो किसी भी मुसलमान के लिए किसी भी किस्म के गलत जज्बे से दिल को पाक होना चाहिए। जब हम और आप अपने दिल को ऐसा दिल बना लेंगे ना, ऐसा दिल बना लेंगे, तो फिर अल्लाह ताला के फضل व करम से ये होगा कि यही दिल अल्लाह ताला को पसंद भी आएगा, और अल्लाह ताला पसंद करने के बाद मुझको और आपको जहन्नम से बचा के जन्नत में भेजेगा इंशाअल्लाह। हाज़रीन गिरामी, जो पैगाम मैं देना चाहता था वो यही कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत को पढ़ते हुए अब हम और आप जब इन आयतों पर से गुजरते हैं, तो यहाँ रुक कर हमें देखना चाहिए कि वाकई मेरा और आपका दिल कल्ब सलीम है। अगर है तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से मजीद तौफीक तलब करें, और अगर कमी है किसी भी दर्जे में तो उस दर्जे की कमी को पूरा करें, उस ऐब से दिल को पाक करके दिल को कल्ब सलीम बनाएं। मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करते हुए अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला मुझे, आप सभी हजरात और खवातीन उनको जो कुछ हमने कहा सुना है, कहने और सुनने से ज्यादा इन बातों को समझ कर इन पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाएं। अल्लाह ताला जब तक दुनिया में रखे ईमान और इस्लाम पर कायम रखे, और जब अपने पास बुलाए तो ईमान की हालत में बुलाए, आमीन। मैं अपनी गुफ्तगू के इख्तिताम पर जमात और जमीयत के जितने जिम्मेदार हजरात हैं और यहाँ मस्जिद के जो जिम्मेदार हजरात हैं, उन तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि पिछले महीने मैंने वादा किया था हाज़री का, और ऐलान भी आपने शायद देखा होगा, लेकिन मेरे गले की खराबी, तबीयत कोई ख़राब ज़्यादा नहीं थी लेकिन गला पस्त था, कई दिन तक मैं आवाज़ नहीं निकल रही थी, मैं शरीक नहीं हो सका। मुझे खुशी इस बात की हुई कि उसकी तलाफ़ी का मौका उन्होंने फ़ौरन दिया। मैंने कोई वादा पिछले महीने के लिए किया था, इस महीने में मैंने पूरा कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आप भाइयों का शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। अल्लाह ताला आपकी हमारी सबकी मेहनतों को कबूल फरमाए और हम सब के ज़ख़ीरे हसनात में इनको शामिल फरमाए, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।